Good morning, student. Chapter 2, The Era of Congress, and page number 30. We have discussed this chapter in Zoom class 2. Today I am sending its video of next part, page number 30. I am going to start Congress dominance in the first three general election. In this paragraph, we will study how government established its dominance in the first three general election 1952, 1957 and 1967, and there is map also given Congress dominance 1952 and 1957. In this map, this is yellow, those state shows in yellow color, and these are states are Congress. State means Congress party won the election in this state and ruled these states. And Jammu Kashmir not in Congress category, it was ruled by National Conference, and Kerala was ruled by National Left Front. And these are graph also given, bar graph also given. These show the percentage of votes achieved by different parties. And this shows Congress had won the highest most of the seat in Lok Sabha in 1952. It got to 364. It 364 seat out of 489 seat. Then Lok Sabha seat 489 in 1952. Now it is 545. Means it got around 74% seat in the Lok Sabha. देखिए हाउ मच मेजोरिटी इट गोट, एंड इन सेकेंड जनरल इलेक्शन it got to 371 seat out of 494. Second general election, in second general election Lok Sabha seat was increased 489 to 494, means 5 seats were increased. It got 371 to 71 out of 494, means 75% seat it got in second general election. And in third general election it got 361 out of 494. It means 73% seat it got. So means Congress achieved the highest seat in Lok Sabha in three first general election. Now page number 31. A look at the electoral map on the previous page would give a sense of the dominance of the Congress during the period 1950 to 1962 in the second and the third general elections held in 1957 and 1962 respectively. The Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the सीट. मीन्स कि कांग्रेस ने 3/4% जो सीट है लोकसभा की वो विन की. नन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज कुड विन इवन 1/10 ऑफ द number of seat won by the Congress. In the state assembly election in the Congress did not get majority in a few cases. The most significant of these seats was in Kerala in 57. This map shows कि अपोजिशन पार्टी 1/4 सीट से भी ज़्यादा 1/10 सीट भी वो अचीव नहीं कर सके. फॉर एग्जांपल CPI-IND 20, SW 18, JS 14, PSP 12, DMK 7, SOC 6 और अदर जो पार्टी 27. The extent of the victory of the Congress was artificially boosted by our electoral system. The Congress won 3 out of every 4 seats, but it did not get even half of the vote. यहाँ पर वो जो हमने फर्स्ट 11 क्लास में जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम रीड किया था यहाँ पर आप उसके बारे में बताया जा रहा. आल्दो कांग्रेस वन द सीट 75%, 74%, 73%, but
it did not win the 50% vote of the people. In 1952, for example, the Congress obtained 45% of the total votes, यानी 74% सीट लेने के बाद भी it achieved only 45% of the total vote, but it managed to win 74% of the seat. The Socialist Party, the second largest party in the terms of votes, secured more than 10% of the vote all over the country, but it could not even win 3% of the seat. ये FPTP को यहाँ पर बताया गया है. How did this happen? For this, you need to recall the discussion about the first past post system method in your textbook Indian Constitution at work last year. In this system of election that has been adopted in our country, the party that gets more votes than other tends to get much more than its proportional share. This is exactly what worked in favor of the Congress. ये जो FPTP जो सिस्टम है, इसी ने कांग्रेस को फेवर किया, और जिसके कारण उसका जो डोमिनेंस है वो फर्स्ट रीजनल इलेक्शन में इस्टेब्लिश हो गया. इफ़ वी एड अप द वोट्स ऑफ ऑल ऑफ द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट, इट वाज मोर देन द वोट्स ऑफ द कांग्रेस. यानी कि अगर सभी पोजीशन पार्टी ने जितने वोट अचीव किए, अगर उनको प्लस किया जाए तो वो कांग्रेस ने जितने वोट अचीव किए थे वो उन सबसे ज़्यादा थे. बट द नॉन कांग्रेस वोट्स वर डिवाइडेड बिटवीन different rivals party and candidates, so the Congress was still way ahead of opposition and managed to win. कि वो वोट तो डिवाइड हो गई, इस कारण कांग्रेस ही हाईएस्ट पोजीशन पर रही और उन्होंने ही कंट्री को रूल किया, और उनका ही जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यू रहा. ये कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला बच्चों को, जैसे अभी मैप में मैंने बताया था कि केरला में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी. ये उसके बारे में है कि एज अर्ली इन 1957 कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला in the assembly election, in which 1957 the Communist Party won the largest number of seats in the Kerala legislature. 57 में कम्युनिस्ट पार्टी ने केरला लेजिस्लेचर में लार्जेस्ट सीट गेन की. दी पार्टी 160 ऑफ द 126, जो 126 सीट में उन्होंने 60 सीट्स अचीव किया एंड हैड द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट्स, और 5 इंडिपेंडेंट जो MLA थे उनको सपोर्ट मिल गया, जिसके कारण उनकी जो गवर्नमेंट है, लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट वहाँ पर बन गई. द गवर्नर इन्वाइटेड EMS Namboodiripad, the leader of the communist legislature party, to form the ministry. For the first time in the world, the communist party government had come to power through democratic election. ये जो लेफ़्ट फ्रंट है CPI है उसके बारे में दिया हुआ है. ये आप कंप्लीट पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट है पेज नंबर 34. यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी के बारे में दिया गया कि सोशलिस्ट पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस के बाद. ये जो पार्टी थी it was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted to a more radical and egalitarian Congress. ये कांग्रेस का एक तरह से पार्ट था जो 1934 में बनाया गया था, जो कि यंग लीडर्स थे, उन्होंने बनाया था. ये इगलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे. इन 1948 द कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इट्स मेंबर फ्रॉम having a dual party membership. This forced the socialist to form a separate socialist party in 1948. इसलिए जो सोशलिस्ट पार्टी का 1948 में सेपरेशन हो गया कांग्रेस से. दी पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच disappointed to its supporters. Although the party had presence in the most of the state of India, it could achieve electoral success only in a few pockets. बहुत कम जगह इनको सक्सेस मिली है. ये है आचार्य नरेंद्र देव, ये भी सोशलिस्ट पार्टी के फ्रीडम फाइटर एंड फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. jailed several times during the freedom movement, active in peasants movement, a scholar of Buddhism. After independence led the social party and later the Praja Socialist Party. नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. अब हम हाउ कांग्रेस अचीव इट्स डोमिनेंस ये हमने रीड किया. अब इसका नेचर क्या था, इसने डोमिनेंस को कैसे कंटिन्यू किया. इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस्ड द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी. इफ वी लुक अराउंड
worlds we find many other example of one party dominance, but there is a crucial difference between those and the Indian experience. These topics were discussed by in June class 2 कि जो इन कंट्री इंडिया में डेमोक्रेसी होते हुए भी, मल्टी पार्टी सिस्टम होते हुए भी जो एक वन पार्टी जो डोमिनेंस चला था, वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, अदर कंट्री में भी इट वाज हैपनिंग। बट जो इंडिया में जो चल रहा था और जो अदर कंट्री में चल रहा था, इसमें कुछ जो डिफरेंस था, इट हैज़ मच डिफरेंस between Indian experience and other country experience. In the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy. In some countries like China, Cuba, Syria, the constitution permits only a single party in the rule to country. Some others like Myanmar, Belarus, Egypt and Eritrea are effectively one party status due to legal and मिलिट्री मेजर्स। डिफरेंस क्या था अगर कंट्री के एक्सपीरियंस में और इंडिया के एक्सपीरियंस में, कि इंडिया में जो था वो पब्लिक ने यानी सिटीजन ने, वोटर ने ही चूज किया था वन पार्टी को, लेकिन जहाँ अदर कंट्री में ये सब चल रहा था, वहाँ पर जैसे चाइना, क्यूबा और सीरिया को अगर हम बात करें तो वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम ही था। एंड जो अदर कंट्री म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इरिट्रिया में यहाँ पर क्या कि जो डेमोक्रेसी थी वो एक नॉमिनल डेमोक्रेसी थी। Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan were also effectively one-party dominant states. It was distributing the domination of Congress party in India. All these cases it happened under democratic condition. Many parties contested election in condition of free and fair election. But in India, one party dominance was happened in election in democratic condition, and free and fair elections are conducting in our country. And in these free and fair elections, one party dominance was happened, and yet the Congress managed to win election after election. This was similar to the dominance of the African National Congress has enjoyed इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड। यहाँ हम अपनी कंट्री को हम साउथ अफ्रीका से कंपेयर करेंगे कि वहाँ पर भी ऐसे ही वन पार्टी जो डोमिनेंस था PRI का, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो डोमिनेंस रहा, वो भी एक इलेक्शन के बाद ही रहा। ऐसे ही इंडिया में रहा। यहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा वन पार्टी सिस्टम नहीं चला। ये एक डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंडर ही हमारा जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कंटिन्यू रहा। साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला के प्रिजन से बाहर आने के बाद वन पार्टी को जो सिस्टम है वो कंटिन्यू रहा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया गया PRI का, ये 9th में भी रीड किया था। फाउंडेड इन 1929 एज नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी एंड लेटर रीनेम्ड इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये स्पेनिश की पार्टी है। एक्सरसाइज्ड पावर इन मैक्सिको फॉर ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स। इस पार्टी ने मैक्सिको में 6 डिकेड्स मीन 60 ईयर्स तक जो है पावर इंजॉय की। इट रिप्रेजेंटेड द लेगेंसी ऑफ द मैक्सिकन रेवोल्यूशन। जैसे हमारे कांग्रेस के पीछे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल की जो लेगेंसी रिप्रेजेंट हो रही थी, इसी तरह ये जो PRI है इसमें भी मैक्सिको की जो रेवोल्यूशन है उसकी जो लेगेंसी है वो काम कर रही थी। ओरिजिनली PRI was a mixture of various interests including political and military leaders, labor and peasant organization and numerous political parties. Over a period of the time, PRI के बारे में ये आप शॉर्ट सा नोट बना के अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई का आपको यहाँ पर एक डिस्कस दिया गया है। कांग्रेस लीडर थे, यूपी से थे, मिनिस्टर इन यूपी इन 1937 एंड अगेन इन 1946, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया। इंडिया की फ्रीडम के बाद ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर 1952 से 1954 तक रहे रफ़ी अहमद किदवई। बच्चों ये जो अलग अलग आपको इसमें कैरेक्टर स्केच मिल रहे हैं, ये हमारा जो मैंने अभी आपको एक
PDF भी सेंड की थी, उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था कि वाई कांग्रेस इज़ कॉल्ड अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये इसीलिए आपको अलग अलग पर्सन के अलग अलग जो ग्रुप से रिलेटेड जो पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस यही बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू कि जो कांग्रेस था वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है था कि जिसमें हर तरह के, हर रिलीजन के, हर कम्युनिटी के, हर ग्रुप के जो पर्सन है वो कांग्रेस के अंडर काम करते थे। इसलिए ही कांग्रेस को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि रफ़ी अहमद किदवई मीन्स उस टाइम मुस्लिम भी कांग्रेस के बैनर तले अपना जो है अपनी वर्किंग थी वो यानी कंट्री को सर्व कर रहे थे। द रूट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेंसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ये हम अब डिस्कस कर चुके हैं। कांग्रेस वॉज सीन एज अ हेरिटेटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। मैनी लीडर्स हु वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शन एज कांग्रेस कैंडिडेट। यानी कि जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वही अब कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में खड़े हो रहे थे। दी Congress was already a very well organized party, and by the time the other parties could even think of a strategy, the Congress had already started its campaign। यानी कि जो जब अदर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही थी तब कांग्रेस ने अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट मैनी पार्टीज़ वर फॉर्म्ड ओनली अराउंड इंडिपेंडेंस और आफ्टर दैट। और इसका एक रीज़न ये भी था कि जो ऑलमोस्ट जो अपोजिशन पार्टी है वो बाद में ही इंडिपेंडेंस के बाद ही बनी थी। Thus, the Congress had the first of the blocks advantage. By the time of independence, the party had not only spread across the length and the breadth of the country, as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the local level। क्योंकि जब अदर पार्टी फॉर्म हो रही थी यानी फाउंडेशन बन रही थी तब कांग्रेस ने लोकल लेवल तक अपना नेटवर्क स्प्रेड कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली as the Congress was till recently a national movement, its nature was all inclusive, all those factors to contributed to dominance of the Congress party। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन बन गया कि which factors were contributed to the डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यानी कौन कौन से फैक्टर थे जो कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के रीजन बने। ये सब जो रीजन अभी हमने डिस्कस किए हैं ये सारे आंसर में राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस और सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के साथ साथ आप ये जो पेजेस हैं उसको भी रीड करेंगे तभी आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट, बाय।